ہم ایمان کے احتیاج بھی سننے والے ایماندار برکت پائیں گے. ہم پرزور تالیوں سے خدا کی خاطر کرتے ہیں. ہاللویا. یہ تالیاں میرے لیے نہیں بلکہ میرے زندہ خدا کے لیے. ہم زوردار تالیوں سے اپنے خدا کو مدد کریں. مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو. میں ایونجلسٹ روما سیموئل. میں خدا کی ایک چھوٹی سی ادنی سی خادمہ ہوں. خدا نے مجھے اپنے لیے چنا کہ میں اپنے خدا کے کلام کی خدمت کو کر سکوں. یہ خداوند کا بڑا فضل ہے کہ اس نے مجھے چن لیا, اس دنیا جہاں سے مجھے الگ کیا تاکہ میں اس کی مرضی کے کاموں کو پورا کر سکوں. ہاللویا. میرے عزیزوں, آج کو میں خدا کی شکر گزاری کرتی ہوں کہ خداوند مجھے یہاں لایا کہ میں خدا کے کلام کی خدمت کروں. یہ مذہب خدا کے جلال سے بھرا ہوا ہے. یہاں پر جب ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا جلال کس طرح کام کرتا ہے, ہم نے خوبصورت پرستش دیکھی کس طرح سے خدا کے بندہ نے پرستش کی, لیکن بزرگی کے اعلان میں اس طرح تو نوجوان بھی نہیں پرستش کرتے, لیکن خدا نے اپنے بندہ کو, اگرچہ خدا کا بندہ اس کے ساتھ وفادار ہے تو خدا نے اس کو بڑا زور بخشا ہے. ہم خدا کا شکر کرتے ہیں اور آج صبح ہم اپنے بہتری اور بھلائی کے لیے خدا کے کلام کو سیکھیں گے. میرے عزیزوں, جن کے پاس خدا کا کلام ہے, جو زندگی اپنے ساتھ خدا کا کلام لے کر آئے ہیں, وہ میرے ساتھ مل کر نئے عہد نامہ میں سے ہم دیکھیں گے پہلا پطرس اور اس کا پہلا باب اور اس کی 21ویں آیت کی ہم تلاوت کریں گے. میرے عزیزوں, ہم نے کلام مقدس میں سے حوالہ دیکھا ہے پہلا پطرس اس کا پہلا باب اور اس کی 21ویں آیت کی تلاوت کریں گے. اگر کوئی کلام خدا کی تلاوت کرنا چاہے تو موقع ہے, وہ خدا کے کلام کی تلاوت کر سکتا ہے. خدا کے کلام میں یوں لکھا ہے کہ اسی میں راہ پر ایمان لاؤ, لاتے ہو جس نے اس کو مردوں میں سے جلایا اور ہلاک بخشا, تاکہ تمہارا ایمان اور امید خدا پر ہو, کیونکہ تم نے حق کی تابعداری سے اپنے دلوں کو پاک کیا ہے, جس نے مہینوں کی. بس شکریہ. ایک کی آیت پڑھی. خدا کا پاک کلام پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت, خداوند کا شکر ہو. آمین. میرے عزیزوں, ہم نے کلام مقدس میں سے تلاوت کی ہے پہلا پطرس اس کا پہلا باب اور اس کی 21ویں آیت میں یوں لکھا ہے کہ اس کے وسیلہ سے خدا پر ایمان لائے ہو اور جس نے اس کو مردوں میں سے جلایا تاکہ تمہارا ایمان امید خدا پر ہو. پاک کلام پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت, خداوند کا شکر ہو. ہم شکر کرتے ہیں بہن کے لیے, بہن نے اس کلام کی تلاوت کو ہمارے لیے کیا اور بہت سی زندگیوں نے اس تلاوت کو سنا. اور میرے عزیزوں, کلام مقدس میں یوں لکھا ہے کہ اس کے وسیلہ سے خدا پر ایمان لائے ہو. میرے عزیزوں, آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے خدا کا جلال. آج ہم خدا کے جلال کے بارے میں سیکھیں گے. ہم دیکھیں گے کہ یسوع کس طرح باپ کے جلال میں داخل ہوا. تو میرے عزیزوں, مسیح کے جی اٹھنے سے پر امید واضح ہوئی. جب یسوع مسیح نے میرے اور آپ کے لیے مار کھائی, یسوع مسیح کے مر جانے کے بعد جب یسوع تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا, تو اس کے اٹھنے سے ایمان اور امید کیا ہوئی, واضح ہوئی. ایمان میں پچیدگی آئی اور امید پیدا ہوئی کہ جو مسیح پر ایمان رکھتے ہیں. میرے عزیزوں, اگر میرا مسیح آپ کے لیے اور میرے لیے نہ مرتا تو شاید آج ہم اس جماعت کی صورت میں یہاں جمع نہ ہوتے, لیکن یہ ہونا ضرور تھا. یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ جو خداوند یسوع مسیح کے بارے میں کہا گیا تھا کتاب مقدس میں وہ پورا ہو. اور ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے کس طرح دکھ اٹھایا, صلیبی موت گوارا کر کے پھر وہ باپ کے جلال میں داخل ہوا. میرے عزیزوں, اسی کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں اعمال کی کتاب اس کا 3 باب اور اس کی 13ویں آیت سے 16ویں آیت تک. اگر کوئی کلام مقدس کو پڑھنا چاہے تو آزادی ہے. اعمال کی کتاب اس کا 3 باب
और उसकी 13वीं आयत से 16वीं आयत तक कोई भी जिंदगी कलाम को पढ़ सकती है। अब्राहम और इसहाक और याकूब के खुदा यानी हमारे बाप दादा के खुदा ने अपने खादम यस्सु को जला दिया, जिसे तुमने पकड़वा दिया, और जब पिलातुस ने उसे छोड़ देने का कसद किया तो तुमने उसके सामने उसका इनकार किया। तुमने उस कदूस और राजबाज का इनकार किया और दरख्वास्त की कि ये खूनी तुम्हारी खातिर छोड़ दिया जाए, मगर जिंदगी के मालिक को कत्ल किया, जिसे खुदा ने मुर्दों में से जिलाया। जी शुक्रिया। मेरे अजीजों, हमने एक बार फिर से कलाम मुक़द्दस में देखा, अमाल की किताब उसका 3रा बाब और उसकी 13वीं आयत से हमने 16वीं आयत तक देखा है कि बेटी ने पढ़ा है कि इब्राहिम, इसहाक और याकूब का खुदा, हमारे बाप दादा के खुदा खादिम यस्सु को जलाल दिया। किसको जलाल दिया? यस्सु को जलाल दिया, जिसे तुमने पकड़वा भी दिया। जब पिलातुस ने उसे छोड़ देने का कसद किया तो तुमने उसके सामने उस रास्तबाज का क्या किया? इनकार किया। और एक और खूनी तुम्हारी खातिर छोड़ा जाए, बल्कि खुदा की बेरहम कौम ने अपने बादशाह का इनकार किया कि उन्होंने कहा कि हमारे लिए उस खूनी को छोड़ा जाए, उस बराबा को छोड़ा जाए, बल्कि इस रास्तबाज को क्या किया जाए? सलीब दी जाए। क्या किया जाए? मेरे अजीजों, खुदा ने उसे मुर्दों में से जलाया। ये होना जरूर था मेरे अजीजों। अगर खुदा मेरे और आपके लिए कुर्बान ना होता तो फिर खुदा बाप के जलाल में ना जाता और आज मैं और आप हम फजल वाले तख्त के पास ना आते, क्योंकि फजल वाले तख्त के पास और जलाल वाले तख्त के पास आने से फजल और रहम जारी हो जाता है। हालेलुया। हम खुदा के जिंदा गवाह हैं कि खुदा ने हमारी खातिर क्या की? सलीब उठाई और फिर हमारी खातिर वो क्या हुआ? कुर्बान हुआ और खुदा अपने बाप के जलाल में दाखिल हुआ। और इसी के नाम से, उसके ईमान से, जो उस पर ईमान लाते हैं, हम जो यस्सु पर ईमान लाते हैं, हम क्या होते हैं? फिर खुदा हमें क्या करता है? हर तरह की मुश्किल, परेशानी, बीमारी से हमें क्या करता है? शिफा बख्शता है, अगर हमारी जिंदगी में क्या है? ईमान है। तो मेरे अजीज़े, अगर हम देखते हैं कि बेशक उसी के ईमान से, जो उसके वसीला से है, कामिल तंदुरुस्ती। कौन सी तंदुरुस्ती खुदा ने हमें दी? यस्सु में। मेरे अजीजों, आप अपनी बीमारियों को ना देखें, हमारी बीमारियों को मिटाने वाला और हमारी बीमारियों से हमें छुटकारा देने वाला मेरा और आपका जिंदा खुदा है, जिसने हमें कामिल तंदुरुस्ती दी। इस मौत के कलवरी के सफर से गुजर कर और फिर उसने तीसरे दिन मौत और कब्र पर फतह पाकर हमें क्या दी? कामिल तंदुरुस्ती दी। मेरे अजीजों, इस हवाले में हमें मिलता है कि मसीह यीशु के जी उठने से बीमारों को क्या मिली? शिफा मिली। हम गीत गाते हैं ना कि तेरे मार खाने से हमने क्या पाई? शिफा पाई। यीशु के मार खाने से मैंने और आपने शिफा पाई। मेरे अजीजों, जी उठने से बीमारों को क्या मिली? शिफा मिली और कामिल तंदुरुस्ती मिली। जलाल का बादशाह, आगे वर्ड से जलाल का बादशाह। जलाल का बादशाह कौन है? हमारा बादशाहों का बादशाह यीशु मसीह है, जो जलाल का बादशाह है। हम अपने जलाल के बादशाह के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। और जलाल के लायक खुदा है, वो तारीफ और तमजीद के लायक खुदा है। मेरे अजीजों, यीशु मसीह जलाल का बादशाह है और अपने जलाल से मोजज़ात करता है और करने की कुदरत रखता है। हालेलुया। इसी के साथ हम एक हवाला और देखेंगे, रोमियो उसका 6 बाब और उसकी 14वीं आयत में लिखा है, बस मौत में शामिल होने के बपतिस्मा के वसीला से हम उसके साथ दफन हुए, ताकि जिस तरह मसीह बाप के जलाल के वसीला से मुर्दों में जलाया गया और इसी तरह हम भी नई जिंदगी में चले। कलाम पढ़े और सुनी पर खुदा की बरकत हो। मेरे अजीजों, रोमियो में लिखा है कि खुदा फरमाता है कि बस मौत में शामिल होने के सबब से हम कब मौत में शामिल होते हैं? मेरे अजीजों, जब मैं और हम पानी का बपतिस्मा लेते हैं तो फिर हम मसीह की मौत में क्या होते हैं? शामिल होते हैं। मसीह की मौत में शामिल होते हैं तो इसी के साथ हम फिर उसके साथ हम क्या होते हैं? दफन होते हैं। जब हमें पानी में भिगोया जाता है तो हम मसीह के साथ क्या हो जाते हैं? दफन हो जाते हैं। और जब उठते हैं तो मसीह में क्या होते हैं?
जी उठते हैं। और इसी तरह बाप के जलाल के वसीला से वो मुर्दों में जलाया गया। और मेरे अज़ीज़ों, यीशु मसीह के जिंदा होने से एक नई जिंदगी का क्या हुआ? आगाज हुआ। जो ताइब होते हुए और बपतिस्मा लेते हैं, फिर वो नई जिंदगी में कामिल पाकीज़गी के साथ चलते हैं। यानी जो यीशु पर ईमान लाते हैं, फिर खुदा के बेटे पर ईमान लाने के सबब से वो अपने गुनाहों से क्या करते हैं? तौबा करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, तो फिर वो क्या करते हैं? फिर एक नई जिंदगी, बल्कि कामिल पाकीज़गी जिंदगी के साथ चलते हुए ईमान और उम्मीद खुदा पर रखते हैं। हमें भी इसी तरह अपने खुदा पर क्या रखनी है? कामिल उम्मीद रखनी है और अपने खुदा पर ईमान रखना है, ताकि हम खुदा के जलाल में दाखिल हों। मेरे अज़ीज़ों, यहाँ पर हम देखते हैं पुराने अहदनामा में से कौम बनी इस्राएल के बारे में। हम वहाँ पर भी देखते हैं कि जब कोविड सीना पर, तब लोग खुदा के जलाल के आगे खड़े नहीं हो सकते थे, क्योंकि खुदा का जलाल इस कदर होता था कि कौम बनी इस्राएल खुदा के आगे थर-थर कांपते और डरते थे। और वो मूसा से कहा करते थे कि ए मूसा, तू ही खुदा से बात कर लिया कर। मेरे अज़ीज़ों, हम देखते हैं कि जब कौम बनी इस्राएल को खुदा मिस्र की गुलामी से छुड़ा कर लाया, तो फ़िरौन और उसके रथ उसके पीछे उसकी कौम का क्या किया? पीछा किया। तो जब वो उनके पीछे अपने रथों समेत आए, तो कौम बनी इस्राएल ने जब उन्हें देखा तो वो डरे और मूसा से कहा कि आगे समंदर है और पीछे हमारे दुश्मन हैं, हम कहाँ जाएं? लोग घबरा गए। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, खुदा तो कुदरत वाला खुदा है, खुदा तो कुछ भी कर सकता है। मेरे अज़ीज़ों, जहाँ पर हमारी सोच खत्म होती है, जहाँ पर हमारी सोचें काम नहीं करती, वहाँ खुदा की कुदरत काम करती है। तो मेरे अज़ीज़ों, आइए हम देखते हैं कि किस तरह खुदा ने अपने जलाल के साथ अपनी कौम को बचाया। मेरे अज़ीज़ों, जब पीछे फ़िरौन थे, आगे समंदर था, तो मूसा वहाँ कर खड़ा था और लोग उसे तानाज़नी करने लगे, बातें करने लगे कि मूसा, हम क्या करें? हम कहाँ जाएं? पानी है, हम डूब जाएंगे। तो मेरे अज़ीज़ों, जब खुदा ने अपने जलाल को ज़ाहिर किया, तो खुदा ने मूसा से कहा कि लाठी को बढ़ा और समंदर पर मार। तो समंदर क्या हो गया? दो हिस्से हो गए। उनके बीच में से क्या मिला? रास्ता खुदा ने बना के दिया। हालेलुया, हालेलुया। आज खुदा मुझे और आपको भी मुश्किलों से निकाल सकता है। खुदा हमारे लिए भी रास्ते बना सकता है। और हमें तो खुदा ने इतना ही कहा है कि अगर तुम्हारे अंदर राई के दाने के बराबर ईमान हो, इस पहाड़ से कहो कि यहाँ से बढ़कर समंदर में जा लग, तो वो ऐसा हो सकता है। मेरे अज़ीज़ों, यीशु के पीछे चलने वालों को ईमान की जरूरत है। वो कौम बनी इस्राएल क्या करते थे? घबरा जाते थे। तो मेरे अज़ीज़ों, जब खुदा ने समंदर से रास्ता बना कर दिया, तो जब सारी कौम गुजर चुकी, तो रथों ने भी चाहा, फ़िरौन ने चाहा कि हम भी इसी रास्ता से गुजरे। जब वो समंदर के रास्ता पर चले, तो खुदा ने पानी को दो हिस्से कर दिया। वो अपने रथों समेत क्या हो गए? गर्क हो गए, समंदर में डूब गए। और जब ऐसा हुआ, तो वे कौम इस्राएल ने खुदा के लिए एक गीत गाया। और उस गीत में मरियम नबिया ने अपने हाथ में दफ लेकर खुदा की हम्दो सना करते हुए कहा कि जलाल का बादशाह क्या हुआ? फतहमंद हुआ। हालेलुया, हालेलुया। जलाल का बादशाह क्या हुआ? और खुदा ने उनके दुश्मनों को समंदर में डाल दिया। मेरे अज़ीज़ों, बाइबल मुक़द्दस बयान करती है, ये सारी बातें ख़रूज की किताब में हमें मिलती हैं। अगर हम ख़रूज उसका 40वां बाब और उसकी 34 वर्ष को देखें, तो वहाँ पर लिखा है कि अबर छा गया और मस्कन खुदा के जलाल से मामूर हो गया। और इस कदर खुदा का जलाल था कि मूसा दाखिल ना हो पाया। मेरे अज़ीज़ों, आज तो फजल का दौर है, हम खुदा के जलाल के तख्त के पास हैं और जलाल का बादशाह हमारे साथ है। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं इस बात के लिए कि कौम बनी इस्राएल खुदा के जलाल से थर-थर कांपती थी और खुदा हमें अपने जलाल में दाखिल करता है। हम खुदा का शुक्र करते हैं इस बात के लिए। मेरे अज़ीज़ों, यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना एक अनोखा वाक़या है। ऐसा वाक़या मैंने और आपने कहीं ऐसा नहीं सुना कि कोई पैगंबर या कोई नबी जो है ऐसा वाक़ये से वो गुजरा हो। मेरे अज़ीज़ों, अगरचे अहद अतीक में भी
मुर्दों में से जी उठे। अगर हम देखें अलीशा के बारे में और बहुत से हम पीछे देखें अहद अतीक में, तो वहाँ पर हम देखते हैं बहुत से मुर्दे क्या हुए, जी उठे, लेकिन वो खुदा के जलाल में दाखिल ना हुए। उन्होंने वो अज़ली कुर्बानी को कुर्बान ना किया, बल्कि ये सब कुछ करने के लिए यीशु ने अपने प्यारे बेटे को इस दुनिया जहां में भेजा। और अहद जदीद में भी हम देखते हैं कि यीशु के वसीला से ये सब कुछ मुमकिन हुआ कि यीशु मुर्दों में से जिंदा हुए, क्योंकि वो जलाल और कुदरत के साथ मौत और कब्र के बंधन तोड़कर क्या हुए, जिंदा हुए। मेरे और आपके यीशु किस तरह मौत और कब्र पर फतह पाई? यीशु जलाल और कुदरत के साथ मौत और कब्र के बंधन तोड़कर जिंदा हुए। अगर हम कलाम मुकद्दस पर गौर करें तो भी मेरे अजीजों, अगरचे काहिनों और फरीसियों ने पिलातुस के पास जाकर खास सिक्योरिटी, खास पहरेदारों का क्या किया, इंतजाम किया। मैं और आप जानते हैं, हम इस वाक़े को बचपन से सुनते आ रहे हैं कि यीशु मसीह को जब कब्र में रखा गया, जब यीशु ने सलीब पर जान दी, तो मेरे अजीजों काहिनों और फकीहों और फरीसियों ने क्या किया कि बहुत सख्त पहरेदार वहाँ पर क्या किए, बिठा दिए कि ऐसा ना हो कि यीशु के शागिर्द आए कि उसे आकर उसकी लाश को चुरा के ले जाए, क्योंकि वो कहते थे कि इस झूठे इंसान ने कहा है कि मैं तीसरे रोज क्या होगा, जिंदा हो जाऊंगा। तो मेरे अजीजों, पिलातुस के पास जाकर खास पहरेदारों का क्या किया, इंतजाम किया, ताकि वो पहरेदार उस कब्र की क्या करें, निगहबानी करें। लेकिन यीशु मसीह कुदरत और जलाल के साथ, जलाल और फतहमंदी से जी उठा। हालेलुया। मेरे अजीजों, यीशु मसीह कुदरत और जलाल से फतहमंद हुआ और जी उठा। मेरे अजीजों, यीशु को पहरेदारों की जरूरत ना थी, क्योंकि खुदा जिंदा खुदा है और ये सब कुछ होना जरूर था। और जब यीशु 3 दिन कब्र में रहे, तो आलमे रवा में यीशु ने खिदमत के काम को किया। मेरे अजीजों, मसीह के जी उठने के बाद जलाल में दाखिल होना भी जरूर था, क्योंकि उसने बाप की मर्जी को पूरा किया, और बाप की मर्जी को पूरा करने के बाद वो फिर खुदा के जलाल में दाखिल हुआ, वो आसमान पर जिंदा उठाया गया। जिंदा होने के बाद मसीह आमूस की राह पर 2 आदमी जब गुजर रहे थे, तो लोगों ने जब ये सारा सलीबी मंजर देखा, वाक़या देखा, तो लोगों में खौफ था। काफी लोग, पूरा इलाका खौफ में डूबा हुआ था। तो जिंदा होने के बाद मसीह आमूस की राह पर 2 आदमियों को बताया कि दिल उठाकर जलाल में दाखिल होना जरूर था। मेरे अजीजों, जब यीशु मसीह ने उन पर अपने आप को जाहिर किया, जब यीशु जिंदा हुए, तो यीशु ने अपने आप को अपने शागिर्दों पर जाहिर किया। सबसे पहले मसीह के साथ जो औरतें थी, खुदा ने अपने आप को उन पे जाहिर किया और कहा कि तुम जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो। मेरे अजीजों, इसी तरह में खुदा ने आमूस की राह पर चलते हुए बहुत से अपने नबियों पर, अपने शागिर्दों पर अपने आप को जाहिर किया। आज तक हम अपने जिंदा खुदा को देखते हैं, और मेरा ईमान है कि हम में से बहुत से ऐसे बहन भाई होंगे जिन्होंने अपनी आंखों से खुदा को देखा होगा। और जब भी खुदा को हम देखते हैं, तो खुदा के हाथ खुदा दिखाता है कि ये मेरे हाथ वही किलों वाले हाथ हैं। मेरे अजीजों, मैं आपको यहाँ बताना चाहती हूँ कि मेरी बहन थी, उसने किसी के लिए प्रे की, तो वो बीमार था, उसके हाथों के लिए उसने प्रे की, तो खुदा ने उसे दिखाया। वो प्रे करने के बाद जब घर आई, तो उसके हाथों में इस कदर अजियत नाक दर्द थी। तो खुदा ने जब उससे रोया में बात की, और खुदा ने उसे बताया, मेरी बेटी, तू अगर उस शख्स के लिए दुआ कर चुकी है, तो इन्होंने जब मुझे नहीं छोड़ा, मेरे हाथों को इस तरह से अजियत दी, तो उस तकलीफ को दिखाते हुए खुदा ने अपना आप उस पर जाहिर किया। मेरे अजीजों, ये टेस्ट मैंने देने से बताने का मकसद ये है कि खुदा आज भी जब अपने बंदे बंदियों या बेटे बेटियों पर नाजिल होता है, तो खुदा अपने आप को अपने लोगों पर जाहिर करके दिखाता है कि देखो मेरे हाथ वही है जिन्हें सिपाहियों ने क्या किया था, छेदा था। मेरे अजीजों, यीशु मसीह ने बाप की मर्जी को पूरा किया, और आज मेरे अजीजों मुझे और आप पर भी
लाजिम है कि हम भी अपने आसमानी बाप की क्या करें, मर्जी को पूरा करें। हम यीशु मसीह के कहने के मुताबिक चले, हम पानी के बपतिस्मा में शामिल होकर हम भी उस जलाल के बादशाह के पास आ जाएं, जिसके पास रहम ही रहम है। जब हम उसके पास आएंगे, अपनी दयानतदारी के साथ उसके हुजूर झुकेंगे, तो यकीनन वो मुझ पे और आप पर अपना रहम जारी करेगा और हम उसके फजल के तख्त के पास हमेशा रहेंगे। मेरे अजीजों, अगर बाइबल मुकद्दस में हम देखें, बाइबल मुकद्दस में लिखा है और बाइबल मुकद्दस में हमें मिलता है, हमें मार्था की कहानी के बारे में मिलता है। हम सब लाजर के बारे में जानते हैं और लाजर की बहन मार्था थी। खुदा ने उससे कहा कि अगर तू ईमान लाएगी तो मेरा जलाल क्या करेगी, देखेगी। मेरे अजीजों, लाजर जो मर चुका था, उसकी बहन कहती थी कि ऐ खुदा, इसमें से अब बदबू आती है। यीशु ने कहा कि मुझे कब्र पर ले चलो, और जब वो वहाँ गए तो यीशु ने कब्र के बाहर ही से लाजर को आवाज दी, तो मुर्दा अपने कफन समेत क्या हुआ, जी उठा और बाहर निकला। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर हम देखते हैं ईमान की बात है। खुदा ने मार्था से कहा कि अगर तू ईमान लाएगी, खुदा ने कहा जिंदगी और क़यामत मैं हूँ। मेरे अजीजों, खुदा सब कुछ करने की कुदरत रखता है और हमें खुदा के जलाल को देखने के लिए क्या करना है, हमें खुदा के जलाल को देखने के लिए अपने ईमान को पुख्ता रखने की जरूरत है। हम देखते हैं रोज हमारे कलीसिया में मौजूदात होते हैं, बहुत सी जिंदगियां इब्लीस के हाथों जो बीमारियों और मुसीबतों में झगड़ी हुई है, बहुत सी जिंदगियां आजाद होती हैं। जब वो आजाद होती हैं तो फिर खुदा का जलाल क्या होता है, जाहिर होता है। मेरे अजीजों, इसी के साथ हम देखते हैं बाइबल मुकद्दस में लिखा है, मूसा नबी की किताब और उसका 6 बाब और उसकी 3री आयत में लिखा है कि सारी जमीन खुदा के जलाल से क्या है, मामूर है। मेरे अजीजों, और आसमान है जो खुदा का जलाल जाहिर करता है। अगर हम ऊपर निगाह करें तो ऊपर नीला आसमान बगैर सतूनों के खुदा ने खड़ा किया और वो आसमान खुदा का जलाल जाहिर करता है। और अगर हम जमीन पर देखें, जमीन खुदा के पांव की चौकी है और सारी जमीन क्या है, उसके जलाल से मामूर है। मेरे अजीजों, और अगर हमारी जिंदगी में गुनाह होगा तो फिर हमारी जिंदगियों से जलाल जाहिर नहीं होगा। मेरे अजीजों, हमें अपनी जिंदगियों से गुस्से को तरक करने की जरूरत है ताकि हमारी जिंदगियों से क्या जाहिर हो, जलाल जाहिर हो। मेरे अजीजों, रोमियो उसका 3रा बाब और उसकी 23वीं आयत में लिखा है, सबने गुनाह किया और खुदा के जलाल से क्या हुए, महरूम हुए। हमें अपनी जिंदगियों से क्या करना है, गुनाह को मिटाना है। गुस्से को अपनी जिंदगी से तरक करें, बल्कि गुस्सा करें लेकिन गुनाह ना करें। मेरे अजीजों, तो जब हम इन बातों को अपनी जिंदगी से निकालेंगे, आज के इस दौर में यीशु मसीह की तालीमात के मुताबिक हमें चलने की जरूरत है। और यीशु मसीह की तालीम है कि हम अपने अंदर से गुस्से को और गुनाह को हम जन्म ना लेने दे, बल्कि जब हम बातों को अपनी जिंदगियों से निकालेंगे तो बल्कि क्या होगा, हमारी जिंदगियों से खुदा का नाम इज्जत और जलाल पाएगा। गुनाह खुदा के जलाल से हमें क्या करता है, दूर करता है। मसीह के चश्मदीद गवाह कौन है? मेरे अजीजों, पहले चश्मदीद गवाह यीशु मसीह के शागिर्द हैं, जो यीशु मसीह की सारी मसलूबियात के उस कलवरी के सफर में यीशु के साथ थे। उन्होंने देखा कि यीशु मसीह ने किस तरह रास्तबाज होते हुए अपने बाप की मर्जी को पूरा किया। तो मेरे अजीजों, दूसरा पत्र और उसके पहले बाप की 17वीं आयत में हमें मिलता है कि यीशु मसीह के चश्मदीद गवाह कौन है, यीशु के शागिर्द हैं। बल्कि आसमान से ये आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। यीशु मसीह जब रास्तबाजी के काम को पूरा करके ऊपर आए तो कबूतर उनके कंधे पे रूहुल कुद्दस की सूरत में नाजिल हुआ। तो तब आसमान से ये आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। मेरे अजीजों, इसी तरह आज मुझे और आप पर लाजिम है कि हम भी यीशु मसीह की मर्जी को पूरा करें ताकि हमारी जिंदगियों से यीशु मसीह को जलाल मिले। हम अपने किरदार और अपनी जुबान से अपने खुदा को जलाल दे सकते हैं। खुदा ने हमें खूबसूरत आवाज दे रखी है कि हम खुदा की प्रस्तिश करते हुए
हम खुदा के नाम को जलाल देते हैं और हम उसके जलाल के बिना कुछ भी नहीं है। ये उसका रहम है हम पर, ये उसका करम और फजल है कि जो आज हम रूहे ज़मीन पर जिंदा हैं। खुदा हमें रोज़ बरोज़ नियामतें देता है मेरे अज़ीज़ों। अभी वक्त है कि हम तौबा करें, अपने खुदा की हज़ूरी में चलें, खुदा के साथ वफादारी दिखाएं और खुदा के साथ साथ चलते हुए खुदा की नेमतों बरकतों को भी हासिल करें और हमेशा खुदा में हम कायम रहें मेरे अज़ीज़ों। और इसी तरह हम साज़ों को बजाकर, क्योंकि मैं और आप, हमारे ज़हन में ये भी होगा हम किस तरह खुदा के नाम को जलाल दें। हम अपने लबों से खुदा के गीत गाकर प्रस्तुत करके हम खुदा के नाम को जलाल दे सकते हैं। खुदा के घर के साज हैं, साज बजाने वाले बेटे और बेटियां जब साजों को बजाते हैं तो वो क्या करते हैं, खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देते हैं मेरे अज़ीज़ों। इसी तरह हमें भी खुदावंद के जलाल में आगे बढ़ना है। हमें जलाल में बढ़ते हुए क्या करनी है, तरक्की हासिल करनी है, आगे बढ़ना है, कामयाब होना है, ताकि हमारी मसीही जिंदगी क्या हो, फलदार हो मेरे अज़ीज़ों। जैसे मसीह ने जिंदगी के खुदा को जलाल दिया, आज हमें भी इसी दुनिया में रहते हुए हम भी अपनी जिंदगियों से अपने खुदा को जलाल दे सकते हैं, अपनी जिंदगियों से खुदा के जलाल को जाहिर कर सकते हैं, उसके जलाल में जिंदगी गुजारे। जैसे बाप जलाल में दाखिल हुआ, हम भी अपने यीशु मसीह अपने बाप के जलाल में दाखिल हुआ और मुझे और आपको यीशु मसीह के जलाल में क्या करना है, चलते हुए अपनी जिंदगियों को खुदा के जलाल को जाहिर देना है, जाहिर करना है मेरे अज़ीज़ों। और उसके जलाल में हमें जिंदगी गुजारते रहना है। जैसे मसीह खुदावंद को आसमान पर चढ़ जाने से सबसे बुलंद नाम और इज्जत और जलाल मिला मेरे अज़ीज़ों। मेरे और आपके यीशु मसीह ने जब सारा सलीबी काम, निजात का काम पूरा किया, मुकम्मल किया, तो फिर वो कहाँ पर गया, आसमान पर मेरे अज़ीज़ों। जैसे कि कलाम मुक़द्दस हमें बताती है, जैसे मसीह खुदावंद को आसमान पर चढ़ जाने से बुलंद नाम, इज्जत और जलाल मिला। अब हमारी जिंदगियों का मकसद है कि खुदा की हम्द और सना तारीफ करते हुए मसीह को सारा इज्जत और जलाल देते रहें। हमें खुदा के जलाल से हमेशा मामूर होने की जरूरत है। खुदा मुझे और आपको इस कलाम के वसीला से बरकत दे।